and for the last 1 year, I started my own venture to manage the pool of fund, जहाँ पे हम डिस्क्रिशनरी मैंडेट रखते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का equities fund के अंदर, commodities के अंदर, currencies के अंदर for managing fund for our clients, right? So, and many of you maybe know this is the world of internet and social media. तो मैं बहुत ज़्यादा मेरी appearance होती है for the seminars, workshop in association with Pakistan Stock Exchange and Canadian Security Institute. I'm also heading CMT Society of Pakistan right now. So obviously these are my activities. And just on this note, Ihtisham, just on this note, I would like you to, just briefly introduce CMT to my students as well. They are MS Finance students, and if they would like to take up this qualification, they can pursue that as well. So if you could just briefly, say a few lines about what CMT is and what are the career prospects for CMT as well. Thank you. Yeah, sure. CMT is basically is a gold standard in technical analysis area. Those of you who know technical analysis and the proper designation in technical analysis is basically the CMT Association is the world renowned institution like CFA. CMT is particularly in technical analysis. अगर टेक्निकल एनालिसिस में किसी को बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए तो CMT आपको फॉलो करनी होती है. इसके 3 लेवल्स होते हैं. लाइक level 1 is basically introduction to technical analysis, level 2 is related to application of technical analysis, and level 3 is more related to your personal experience in association with your sponsors and fellows. और उसके ऊपर आपको research work complete करके आपको 3rd level हासिल करना होता है. I'm privileged to and honored to become Pakistan's first CMT qualified investment manager. Local हमारी society है CMT की, जहाँ पे particularly हम technical analysis को discuss करते हैं, learn करते हैं. And obviously when I was into the investment management industry, initially मेरी अपनी perception भी ये थी कि obviously आप security analysis, वैल्यूएशन, कैश फ्लो एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं. बट लेटर ऑन आई रियलाइज द पॉइंट कि you need to have a very good understanding of the technical strategies as well in order to get a better entry and exit into the market. You need to learn the technical tools and technical strategies. So what I'm going to do today, I'm going to quickly touch upon some of those important techniques within the technical analysis strategies and some of the important tools which I believe would be better for this MS student जो अपना career आगे start करेंगे. So for the jump start of this technical analysis journey, I would just give you a brief introduction of those areas. So what I'm going to do today, I'll be quickly touching about technical analysis theory, assumptions, and benefits. I'll be discussing trend identification techniques with you. I'll guide you about the trend lines, trend channels क्या होते हैं, support क्या होती है, resistance. These are some of the basic tools जो आपको technical analysis करते हुए, security analysis करते हुए आपको required होती हैं. So without any delay, let's get started. And मैं आपको थोड़ा सा एक introduction देता रहूँ technical analysis के बारे में कि many investors primarily they leverage both fundamental and technical analysis when they make investment decisions, right? So by developing an understanding of technical analysis, the traders and investors, they improve their timings. So obviously buy and hold is one strategy. You can always do a security valuation and analysis and jump into the stocks, right? On the basis of their intrinsic value, and you can earn a better return. But the resourceful investor, they always outperform the broader index by improving their cyclical timings. What I mean by cyclical timings, market is always mean reversion. Your intrinsic value is just like the
mean value of the share, right? The market can go up or market can go down. So when the market is down, you need to understand that the share is trading below its intrinsic value, the share is undervalued. So when to jump into the stock, that analysis will always be coming from the technical side of the study. You need to understand the price action. You need to understand the other parameters that I'm going to discuss here today to basically rightly gauge the direction of the share price and the stock price, so you will improve your timing into the market, right? So from a very theoretical standpoint, what is technical analysis? It is the study of data generated by the action of markets and by the behavior and psychology of market participant and observer. So what exactly means is basically it attempts to understand the market sentiment behind price. हम क्या कहते हैं कि जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रही होती हैं. रिमेंबर माय वर्ड, प्राइस इनकॉर्पोरेट्स a lot of public information available. So जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई भी होती है. To keep it very simple, technical analysis uses security past prices to basically predict future price action. आपकी पास्ट की सिक्योरिटी प्राइस को देखते हुए आप आगे की फ्यूचर की प्राइस डायरेक्शन को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. इन वेरी सिंपल प्लेन वनीला वर्ड, आप प्राइस के ट्रेंड को देखकर आप आगे जज करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर की प्राइस कैसी होगी. और इसमें और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा. एक एनालिसिस है कि सिक्योरिटी इंट्रिंसिक वैल्यू को आप यूज करके प्राइस की अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन को आप आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज द फंडामेंटल साइड ऑफ स्टडी. टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि प्राइस की मूवमेंट को देखते हुए उसके साथ दूसरे इंडिकेटर्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप ये जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुस्तकबिल में, क्या फ्यूचर के अंदर प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी, क्या मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. दिस इज ऑल बेसिकली द टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज आर. अच्छा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फीलर कि टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी किस तरह से होती है. व्हाट आई एम गोना डू हियर, मैं आपको केसी 100 इंडेक्स का एक लाइव चार्ट शेयर कर रहा हूँ. दिस इज द हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट ऑफ केसी 100 इंडेक्स. डेली चार्ट ये अवेलेबल है आपके पास. और इफ आई कैन यूज द पॉइंटर हियर, यू कैन सी कि 2016 से जो मार्केट का ट्रेंड रहा है वो अपवर्ड ट्रेंड रहा है till 2017 when market touched the high of 53,000. और उसके बाद मार्केट नीचे आती है 2018 में, एक अपवर्ड स्विंग मार्केट के अंदर आ रहा है, एंड देन मार्केट मूव डाउन अगेन. फिर उसके बाद ये रिकवरी हुई और फिर ये कोरोना के नंबर्स जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हमने एक मजीद क्रैश देखा मार्केट के अंदर. अच्छा, दिस इज बेसिकली अ क्लियर चार्ट फॉर यू, राइट. आप इसको एक प्राइस मूवमेंट के तौर पे देख रहे होंगे, बट जब आप इसको स्टडी करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, तो ये सारे पीक्स एंड ट्रॉफ, ये सारे अप्स एंड डाउन्स आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक दोज ऑफ यू हु नो टेक्निकल एनालिसिस, उनको अंदाजा होगा कि रेजिस्टेंस लाइन क्या थी मार्केट की कि जब मार्केट ने 53,000 को यहाँ पे हिट किया था. मैं शॉर्टली आपके साथ थोड़ी देर में कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जिसको आप देखकर, जिसकी स्टडी करके आप भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और मैं किस तरह से मार्केट के अंदर डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ इन फ्यूचर, राइट. सो दिस इज अ वेरी प्लेन प्राइस चार्ट ऑफ केसी 100 इंडेक्स. कराची स्टॉक एक्सचेंज का हिस्टोरिकल चार्ट है 2016 से लेके 2020-21 तक, और इसके अंदर आपको एक zigzag मूवमेंट नजर आ रही है. बट इनफैक्ट फॉर अ टेक्निकल एनालिस्ट दिस इज द डायरेक्शन. और ये क्या डायरेक्शन है, इंशाल्लाह शॉर्टली उसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा. तो
चलते हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जी व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस. एज आई डिस्कस्ड कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन दैट एनालाइजेस पास्ट प्राइसेस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस एक्शन. ये हमने डिस्कस किया हुआ है. अच्छा, जो फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम ट्रेंड एनालिसिस के अंदर डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर प्राइस किस तरह की हो सकती है. फ्यूचर प्राइस यू नो कि जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो आपके पास फ्यूचर प्राइस मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलना शुरू होती है. इसी तरह से अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको फ्यूचर प्राइसेस zigzag फॉर्मेशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्यूचर प्राइस मिलना शुरू होती है. और मार्केट की एक तीसरी फॉर्म भी है जिसको हम साइडवेज कहते हैं, जहां पे मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर रहती है. अच्छा, इन तमाम पैरामीटर्स को किस तरह से हम गेज कर सकते हैं, किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, we'll start shortly and we'll discuss you. But before that, I just want to tell you कि टेक्निकल एनालिसिस के क्या फवायद हैं, क्या बेसिकली इनकी assumptions हैं जिसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बेस करती है. So I'm gonna quickly touch upon some of the views कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो सिंपल स्टडी है ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो बेसिकली मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं जिससे आपकी मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा होता है. अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस का एक जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ट्रेडिंग के अंदर इवन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिग्नल्स ये जनरेट करके देते हैं. बेसिकली जब आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये तो पता होता है कि जी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 रुपीज है और वो सिक्योरिटी इस वक्त ट्रेड कर रही है 6 रुपीज पे, अंडर वैल्यू है 4 रुपए की और ये शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को टच करेगा. ये अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस आ जाती है. टेक्निकल एनालिसिस का फायदा क्या होता है कि आपके पास क्योंकि लिमिटेड फंड्स अवेलेबल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 100 मिलियन रुपीस सिर्फ मौजूद है. अब उस 100 मिलियन रुपीस को आप उस 6 रुपए के शेयर पे आप उसी वक्त इन्वेस्ट करेंगे, 3 महीने बाद इन्वेस्ट करेंगे या 6 महीने बाद इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज योर कॉल. ये आपकी कॉल होती है बिकॉज उस 100 मिलियन रुपए की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर आपने उस 100 मिलियन को गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट टर्म जब तक वो शेयर मूव नहीं करता आपको वो लॉसेस आप फेस कर रहे होते हैं, राइट. सो टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने मनी मैनेजमेंट की है, मल्टी बिलियन फंड्स को मैनेज किया है फॉर द सॉवरेन फंड्स एंड राइट नाउ आई एम मैनेजिंग अ पूल ऑफ फंड्स हियर. हमारे पास हर पैसे की बड़ी वैल्यू है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 मिलियन रुपीस भी आइडल पड़े हुए हैं तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. You cannot invest in the share and say that ultimately this share will perform because the intrinsic value is, let's suppose, 10 rupees. It will touch 10 rupees after 10 years, after 6 years, after 2 years. You don't know, right? So with the usage of technical analysis, you try to figure out and pinpoint के what would be the timing कि जहाँ पे आप ये पैसे deploy करें उस शेयर के अंदर before the momentum kicks in, जब वो शेयर परफॉर्म करना शुरू करता है. सो जो शॉर्ट टर्म सिग्नल जनरेशन है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस से मिल सकती है. प्लस आपकी वैल्यूएशन एस्टिमेशन बहुत बेहतर हो सकती है. योर कैश फ्लो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर रिलेटिव वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Your price to book analysis, your price to earning analysis, your sum of the part valuation analysis, all these valuation analysis is very, very important to basically improve your valuation estimate. So along with those valuation, आपके technical analysis strategies basically आपको वो laser pointed skill set provide करती है to start investing, to build your portfolio and basically to basically maximize your profit. So from the analysis branches is concerned, one of the main advantage what I believe the technical analysis provides you is basically it helps you to identify the trend changes, right?
आपको ये पता हो जाता है कि कब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक शेयर जो 100 रुपीज से गिर रहा है और वो गिर के 50 रुपए हो गया है, तो क्या अब ये अंडर वैल्यू हो चुका है ये शेयर? क्या इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए कि वो शेयर 50 के बाद वो 25 का भी हो सकता है, वो शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है? ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आ सकती है। So one of the advantage that you can always gain from the study of technical analysis, basically you try to identify कि ये trend change हो गया है from the upward direction to the downward direction। आपको ये पता हो जाता है कि ये मार्केट रिवर्स कर रही है, मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो सारी एडवांटेजेस यू कैन गेन फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, one of the important element that I would like to share here is basically there are 3 branches of technical analysis. People do understand that technical analysis is just the study of price action. Not necessarily, because the sentiment indicator is also very important. पाकिस्तान में इस वक्त सेंटिमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर काम नहीं हो रहा, बट दुनिया में जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस अप्रोचेस हैं वहां पे सेंटिमेंट को काफी अहमियत दी जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं कि लास्ट ईयर पेंडेमिक के बाद दुनिया भर की मार्केट क्रैश हो गई थी, एंड आपको ये भी पता होगा कि ऑयल की प्राइस नेगेटिव ट्रेड होना शुरू हो गई थी। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस वाज ट्रेडिंग इन अ नेगेटिव टेरिटरी, राइट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। दैट वाज द सेंटिमेंट, that was all the sentiment. And those of you who were basically working on the sentiment analysis, unko ye pata tha ki this is a short-lived phenomena, try to capitalize it, invest your fund, and reap the benefit for the longer term perspective. And those of you like जो sentiment के ऊपर काम करते हैं दुनिया में, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की और उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। सिमिलरली सेंटिमेंट इंडिकेटर पे आपको ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर पेसिमिज्म, आपके पास ओवर बॉट, ओवर सोल्ड मोमेंटम की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें सेंटिमेंट इंडिकेटर्स की एनालिसिस से आपको पता लग रहा होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इज बेसिकली द फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड से क्या मुराद है कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द बुलिश फेज ऑफ द मार्केट, वो बढ़ जाती है, राइट। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इन अ बेरिश स्पेल ऑफ द मार्केट एंड द इकोनॉमी, वो कम हो जाती है। सो द फ्लो ऑफ फंड्स बेसिकली टेल्स यू अ लॉट अबाउट द मार्केट फ्यूचर डायरेक्शन, कि इकोनॉमी में ओवरऑल क्या हो रहा है, मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, स्मार्ट मनी फ्लो इस वक्त किन एवेन्यूज के ऊपर जा रहा है। So this is all basically the analysis comes under the branch of technical analysis, and the last but a very important segment is basically the market structure indicator. Today our presentation will mostly be based on this third part of this technical analysis, which is market structure indicator. So why I'm dealing and discussing this today, because it's an easier approach. ये अप्रोच आज ऑब्वियसली इसमें से कुछ एनालिसिस टूल्स मैं आपको आज बताता चलूंगा, ताकि उसको आप यूज करते हुए यू विल बी एबल टू गेज कि जी ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन आजकल पाकिस्तान के अंदर क्या है और दुनिया के अंदर क्या है। अच्छा, जो बेनिफिट्स आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो आई एम गोना क्विकली टच अपॉन दिस टेक्निकल एनालिसिस assumption. There are certain assumptions that technical analysis always believes in. Like for example, technical analysis has a belief like the market discounts everything, right? The price discounts all available information. Similarly, like for example, इसका क्या मतलब है कि price discount all available information? इसका एक मतलब ये है कि आज की प्राइस, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सिक्योरिटी की प्राइस 10 रुपए है, तो हम ये कहते हैं कि आज की जो पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो उस सिक्योरिटी की प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। ऑब्वियसली जो नॉन पब्लिक मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है, बट ऑल पब्लिक मटेरियल इंफॉर्मेशन इज प्राइस्ड इनटू द प्राइस।
सो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एनालिसिस आप गेज कर सकते हैं कि प्राइस फ्यूचर में क्या होगी। सिमिलरली प्राइस मूवमेंट जो है वो एक ट्रेंड की सूरत में होती है मार्केट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, साइडवेज में हो सकती है। बट इस ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन आपको करना जरूरी है, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट assumption इन टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली मार्केट की मूवमेंट्स जो है वो रैंडम नहीं है, इट्स अ नॉन रैंडम मूवमेंट एंड प्राइस एक्शन इज रिपीटेटिव। So obviously one of the belief in technical analysis is basically history repeat itself. आज से 20 साल पहले अगर मार्केट में कोई खास पैटर्न इमर्ज हुआ था तो उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा इमर्ज होगा। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम वो तमाम पैटर्न्स जो अक्वर हो रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में, उसके बेसिस पे आगे की प्राइस एक्शन हम फोरकास्ट करने की कोशिश करें। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता चलूं कि इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियसली मार्केट की प्राइस एक्शन रिपीटेटिव है। देयर आर लाइक कॉमन टेम्पलेट इन पाकिस्तान इकोनॉमी, लाइक फॉर एग्जांपल 1992 से 2021 तक, if you just gauge the Pakistan's economy, there is a very common template. Your currency depreciates, your reserve depletes, your interest rate rate increases, your stock market decreases. These are four important indicators that you need to gauge कि जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है आपके फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन कर जाते हैं। जब फॉरेक्स रिजर्व आपके डिक्लाइन करते हैं आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ना शुरू होता है। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, आपकी स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होती है। This is a very common template from 1991 till 2021. इस टेम्पलेट को आप सब अपने जहन में रखें। इसमें से कोई भी एक इंडिकेटर अगर कहीं पे ऑन होना शुरू होता है तो you can use this template for the future price movement analysis, right? And as a technical analyst, you need to understand कि किस factors के बाद किस तरह के factors आगे होते हैं। तो इसकी study is all about the right analysis of technical analysis. And the fourth very important assumption in technical analysis, basically volume must confirm the trend. क्योंकि price manipulation भी is a very important element in the market. There are few players who try to manipulate the market movement and the price movement. So we need some other confirming indicators जो हमें बताते हैं कि क्या ये जो price movement है, क्योंकि आपकी स्टडी मोस्टली बेस कर रही है प्राइस पे, और अगर प्राइस मैनिपुलेट हो गई तो ऑब्वियसली आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यू नीड दोज इंडिकेटर्स टू बेसिकली राइटली गेज योर प्राइस प्रिडिक्शन। सो अच्छा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लाइक टू टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू माय प्रेजेंटेशन। Ms. Shazia, आप मुझे कुछ बताना चाहेंगी? I think of one or two students had questions, so I asked them to take up questions at the end. But if you're fine with it, they can ask questions now. So I think we have a few hands raised. Ehsan had one, and Atif has one. You can start. You can just ask the question, Atif and Ehsan. Yes, sir. Ehsan है. सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे पास नॉर्मली होते हैं कि जिस तरह हमने बिल्कुल लेक्चर के शुरू में एक फिगर या डायग्राम टाइप शो की थी जिसमें हमने शो किया था कि लास्ट 5 इयर्स का शायद एग्जांपल मार्केट जो है वो किस तरह ट्रेंड की है ना, जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स है। मेरा पॉइंट मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम दो डिफरेंट ग्राफ शो करें इस तरह, एक ग्राफ ये जो 2019 के एंड में या 2020 के शुरू में जो फोरकास्टिंग हुई थी 2021 तक के लिए, वो और एक्चुअल जैसे मार्केट ने बिहेव किया है, उन दोनों का कंपैरिजन। एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू किसी ने सही प्रेडिक्ट किया है, किसी एनालिस्ट ने जिनका कोई ऐसी फिगर हो हमारे पास? ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर किसी ने सही प्रेडिक्ट किया हो।
अच्छा, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के शुरू में मैंने एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था, दिस वन, राइट? काफी एनालिस्ट हैं मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली हमारा एक छोटी सी कम्युनिटी है CMT सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें हम प्राइस के मूवमेंट को ही फोरकास्ट करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम आइंदा आने वाले वीक की, मंथ की फ्यूचर डायरेक्शन हम गेज कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली हमारा यूट्यूब चैनल भी है मार्केट थिंक टैंक के नाम से, EK ग्लोबल कैपिटल के नाम से। उसके ऊपर भी पोस्ट वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर सारी फ्यूचर प्राइस मूवमेंट मौजूद है। तो बहुत सारे एनालिस्ट हैं पाकिस्तान में जो सही से जिन्होंने एनालाइज किया मार्केट की डायरेक्शन को, और ना सिर्फ ये कि 2017 की पीक को आइडेंटिफाई किया जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। और ये मैं आपको थोड़ी देर के अंदर मैं कुछ स्लाइड्स में, अगर इफ यू जस्ट वेट, आई शेयर अ स्लाइड जिसमें आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की होती तो आप भी 2017 के पीक पे जो मार्केट का ऑल टाइम हाई लगा था 53,000 का, आप वो खुद आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो शॉर्टली मैं आपको वो टूल बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि किसी एक एनालिस्ट ने, बहुत सारे अच्छे एनालिस्ट ने मार्केट के आइडेंटिफाई किया था 53,000 का लेवल कि मार्केट पीक आउट हो गई है। सिमिलरली जब मार्केट ने बॉटम किया था लास्ट ईयर मार्च में, अप्रैल के अंदर, तो वहां पे भी बॉटम भी इसकी आइडेंटिफाई हो गई थी। ये सारी टेक्निक्स शॉर्टली आई विल डिस्कस विद यू। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम I'll move on to the the next part of the presentation. We'll take then just Disham, then we will take all the questions in the end, inshallah. So you can just we can keep 10 minutes in the end for the questions, where we will address all the questions, inshallah. Sure, inshallah. Thank you. Okay, so as I discussed earlier, जो मैंने शुरू में बताया था कि आज के इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो तमाम इम्पॉर्टेंट एरियाज आपके साथ शेयर कर लूं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली आप अपनी इन डेप्थ स्टडी के बाद आप एक अच्छी कमांड हासिल कर सकते होंगे जिसपे आप मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। So for a very long term secular trend influences, like the long term secular trend always get influenced by the magnitude of primary bull market and the bear market. So you need to understand what is the primary bull market, what is the primary bear market, and that comes with the concept of trend. The concept of trend is an important aspect of technical analysis. Like, so how come you will be able to understand a primary bull market or a primary bear market? That I'm going to tell you now. So what I'm going to quickly touch upon today, I'll let you know कि trend lines के through आप किस तरह से market की direction को पकड़ सकते हैं, trend channel को use करते हुए, what are the support and resistance, what are the price patterns, and candlestick के ऊपर I'll quickly touch upon some ideas with you, and I'll tell you about the moving averages, जिसके ऊपर आप काम करते हुए आप मार्केट की स्मूथिंग, मार्केट की फ्लक्चुएशंस, मार्केट की मेजर प्राइमरी मार्केट मूवमेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। So coming to the very basic thing, like what are trend lines, like so obviously ट्रेंड लाइंस का अगर हम बेसिक एक मकसद जानना चाहें तो हमें पता है कि ट्रेंड लाइन इज बेसिकली अ डायगोनल लाइन that connects two or more price points and then extend into the future to act as a line or support. इसका मतलब क्या हो रहा है कि for example, let me share a whiteboard with you. Okay, like for example, this is the trend in the market, right? So from a very simple and a layman term, everyone can gauge this is the upward market direction, right? This is the upward market, this is the bullish market. Acha, for understanding a better approach for the technical analysis understanding is basically you need to understand the highs and lows of the market. मार्केट के हाइज एंड लोस का आपको अंदाजा हो कि मार्केट के कहाँ पे पीक पॉइंट्स हैं और कहाँ पे लो पॉइंट्स हैं, और
उन पीक और लो का अंदाजा अगर आपके पास हो जाता है तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जी मार्केट अपवर्ड मार्केट है या डाउनवर्ड मार्केट है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द हायर हाई मार्केट. हायर हाई मींस every high, this is the high and this one is another high, right? Every high is higher than the previous high. So this is the higher high and higher lows. Every low is basically higher than the previous one. So from a technical standpoint, this is the upward market. Technically speaking, this is the upward market where high is higher than the previous one and low is also higher than the previous low, right? Like for example, this is the point, this is the high, this is the low, this is another high and then low and then high. So means this high is higher than this one and similarly this low is higher than this low. So you have a higher high and higher low formation, which means the trend is upward, the market is in the upward direction and this is the bullish market, right? Similarly, you can get a bearish market as well, जहां पे आपको एक bearish market की direction का भी पता लग सकता है. Let me share that with you as well. Like for example, this is the bearish market where you can see every low is lower than the previous low and every high is basically lower than the previous high. So this is a lower low and lower high market, which is basically a bearish market. So from a technical standpoint, you need to learn those technicalities, rather than just having a broader understanding of the technical trend. आपको वो माइनर डिटेल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा और वो जानने की कोशिश करनी होगी कि क्या मार्केट जो है वो बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है या साइडवेज कंसोलिडेशन है. बिकॉज बुलिश मार्केट के अंदर यू विल गेट हायर हाई, in a bearish market you will get lower low. Similarly, in a sideways consolidation, the market will remain sideline. Like for example, in Pakistan, from 2010 to 2011, कोई एक साल का टाइम था जब मार्केट हमारी साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड कर रही थी. It was neither going up nor it was going down, and it was trading within a very tight range, and that range is basically the sideways consolidation market. Nowadays, the market is in the upward market, is the bullish market. And for the last 3 years, from 2017 to 2020, we had a bearish spell of the market. So what we gonna do? Like for example, if we understand that if the market trend is up, what we gonna do? We own a stock for a long-term holding. We will use a volatility stops to protect against any adverse price movement. बिकॉज मार्केट के अंदर हमारे पास वॉलेटिलिटी भी होती है. हमें ये भी पता होता है कि मार्केट वॉलेटाइल नेचर की होती है. इट्स नॉट ऑलवेज द अपवर्ड मार्केट, इट्स नॉट ऑलवेज अ डाउनवर्ड मार्केट. इवन इफ इट इज द अपवर्ड मार्केट, आपके पास ये स्टेयर स्टेप्स के अंदर मार्केट ऊपर जा रही होती है. सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, how would you able to understand कि जी this downward move is just the short term phenomena, the main trend is still the bullish one, and how come you would know कि this downward direction is basically the permanent phenomena and market is going to go down here? Is basically you will learn with the different techniques of technical analysis, right? So even if the market is upward, you will get this downward correction in the upward market, and if the market is downward, you will get some upward correction in a downward market. तो होता क्या है कि जब मार्केट इस तरह से नीचे आ रही होती है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, लोग यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को सेल कर देते हैं पैनिक में कि जी दिस इज गोइंग टू गो डाउन, राइट? और होता क्या है कि मार्केट फिर वहां से ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ नीचे आती है, दे सेल द शेयर के जी मार्केट नीचे जा रही है, वहां से मार्केट फिर ऊपर चली जाती है. सो एज अ गुड टेक्निकल एनालिस्ट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड this downward
trend is basically a short-term phenomena. The secular bull market is still intact, or a secular bear market is still intact. That you can only learn through the technical analysis study, right? And this is a very important part, is basically the patience. You know, in investment, patience is a very important element. Your personal, you know, discipline, your personal inclination towards the principle of investment is very important. आपकी investment की philosophy, आपकी investment की policy को follow करना right through the ups and down in the market is very important. And what I have analyzed over the year, जो मेरी कोई last 15 years की professional portfolio management experience है, उसके अंदर what I have learned कि जी patience is very important. आपका discipline investor होना बहुत जरूरी है. आपकी emotional biasness जितनी कम हो उतना अच्छा है. You have to be very focused what you are going to do. You have to have ample statistics, ample justification available before making any investment decision making, right? So technical analysis की जो सबसे important जो मैं समझता हूँ जो उसका benefit है सबसे ज़्यादा आपकी professional money management में, वो आपको वो discipline provide करता है जो आपको चाहिए होता है अपनी emotional biasness को खत्म करने के लिए. So be patient, sit tight and let the trend run. What I mean कि let the trend run, अक्सर ये देखा गया है कि अगर कोई सिक्योरिटी 10 रुपए से बढ़ के 100 रुपए की तरफ जा रही है, मैं आपको भी रिसेंट एग्जांपल दूं, जो आप में से वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, एक शेयर है फॉर एग्जांपल TRG, राइट? ये शेयर लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर 12 रुपए का था और फिर ये शेयर आजकल 180 रुपीस पे चल रहा है. ओके, 12 रुपए से ये शेयर 180 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है. तो व्हाट यू मीन कि ये सिर्फ ये शेयर इसी तरह ऊपर जा रहा था, इसमें क्या कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आए होंगे? 12 रुपए से 180 रुपए जाने के लिए इसमें कोई अपवर्ड मूव के अंदर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं आई होगी? बिल्कुल आई है, बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आई हुई हैं. और मेरी कुछ वीडियोस हैं जो मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी टीवी के ऊपर, वहां पे हमने अपने तमाम व्यूअर्स को जो हमें फॉलो करते हैं, हमने उनको कहा था जब ये शेयर 40 रुपीस पे ट्रेड कर रहा था, you should stay invested in this share because this share is going to touch 90 rupees within last year. और इस दौरान काफी वॉलेटिलिटी हुई थी. तो मैंने वो बात किस तरह से बैठ के टीवी पे की पब्लिक के सामने, उसके लिए you need a ample conviction, you need ample justification, you need those confidence जो आप ट्रेड करने से पहले आपको चाहिए होती है. और वो कॉन्फिडेंस क्या है, किन बेसिस के ऊपर है, वो प्रिंसिपल्स क्या है, आई डिस्कस विद यू, राइट? सो वो शेयर अगर 12 रुपए से 180 रुपीस तक पहुंचा है, उसमें काफी स्टेयर स्टेप्स जिगजैग्स आए हैं, बट अगर आपको मेन ट्रेंड के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जी दिस इज स्टिल बुलिश, आई कैन होल्ड माय शेयर, आई कैन सिट टाइट एंड लेट द ट्रेंड रन, राइट? So how high or how low can a stock go? You can only learn through technical analysis. अच्छा, अभी जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में आपसे एक बात कही थी कि shortly you will be, every one of you will be able to understand कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू 2017 का जो पीक लगा मार्केट का 53,000 का, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो नाउ हियर इज द मोमेंट. I need your attention right now everyone कि आप देखें किस तरह से 2017 के हाई को हम आइडेंटिफाई कर सकते थे अगर हमें बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आ रही होती. एंड इंशाल्लाह फ्रॉम हियर ऑनवर्ड एवरीवन इन योर क्लास विल बी एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि जी मार्केट 2017 में किस तरह से नीचे गिरी है. तो ये इस चार्ट के ऊपर आप नजर रखें. लेट मी शो यू विद दिस लेजर. ओके, this is basically the high of 1995, right? और उसके बाद एक हाई था 2004 का.
ट्रेंड लाइन के थ्रू हमें क्या अंदाजा होता है? ट्रेंड लाइन आपको ये बताती है कि मार्केट में कहाँ पे सप्लाई आ सकती है। ओके, गौर से सुनिएगा। ट्रेंड लाइन आपको क्या बताती है? व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन टेल्स यू कि कहाँ पे सप्लाई आ सकती है, कहाँ पे डिमांड जनरेट हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये 2 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, और ये दोनों पॉइंट हाईज या लोज हैं, अगर आप इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, एंड एक्सक्यूज माय ड्राइंग बिकॉज थोड़ी मेरी ड्राइंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये मैंने ऊपर एक ट्रेंड लाइन खींची है, राइट? इस ट्रेंड लाइन पे मैंने क्या किया है कि 2 हाई को कनेक्ट किया और उसको मैंने एक्सटेंड टू द राइट किया, तो मुझे पता लगा कि दिस इज पोटेंशियली द सप्लाई एरिया इन द मार्केट, दिस कैन पोटेंशियली बी द सप्लाई एरिया इन द मार्केट। तो क्या होगा कि जब भी मैं 2 लाइन कनेक्ट करूंगा इस तरह से और प्राइस मूवमेंट उसकी नीचे चल रही है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि फ्यूचर के अंदर जब भी शेयर की प्राइस इस लाइन के करीब आएगी तो हमें सप्लाई मिल सकती है। सो ऑब्वियसली वी विल ईदर divest on the high or this supply area, और we will wait कि जी देखते हैं कि क्या सप्लाई एरिया एब्जॉर्ब होती है और डिमांड जनरेट होती है इससे ऊपर, या सप्लाई ऑनर हो जाती है। सो इन अ वेरी सिंपल टर्म व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि this line is basically the resistance line. कर सकते हैं हम, कोई भी 2 पीक उठाएंगे मार्केट की और उसके ऊपर एक्सटेंड टू द राइट करेंगे। एक्सटेंड टू द राइट करने से I think it's everyone facing the issue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think we cannot hear him. Ihtisham, we've lost you. Yeah, I'm sorry, I got disconnected maybe. Yeah, we lost you. We lost the last 2-3 minutes of what you were saying. Okay. Sorry. No problem. Okay. Okay, can you see this screen, Ms. Shazia, right now? Ji, we can see you and we can hear you as well. Ji. Okay, fine. Okay, so what I was trying to tell you is basically the importance of trend line in technical analysis, right? So here I was trying to tell you that in technical analysis, you can gauge the resistance line as well as the support line. How? You need to connect 2 points, like for example, this is 2 point and you got one trend line. आपकी 2 points को connect करने के बाद आप एक trend line हासिल करते हैं और उस trend line के through you'll be able to understand whether this is a supply area or whether this is a demand area. Like for example, if the share price is moving within this line, like in the upper boundary and the lower boundary. So this upper boundary is basically the supply area जहाँ पे हमेशा market की price आके resist करती है, और this lower boundary is basically the demand side जहाँ पे हमें पता होता है कि market इस zone पे आके demand generate करेगी। अच्छा, इसके पीछे क्या underlying concept क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हर शेयर की कोई ना कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो आपने सिक्योरिटी एनालिसिस में पढ़ी होगी, और वो शेयर मार्केट के अंदर उस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चल रहा होता है, कभी कभी नीचे चल रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटिमेंट, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द लिक्विडिटी, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड, XYZ different factors. So this straight line
is basically your intrinsic value, which is the fundamental fair value. But in between this fair value, market की price consolidate करती है towards the upward zone and the downward zone. अच्छा, this upward zone का मतलब क्या होता है कि for example अगर 10 रुपए सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू है तो शेयर शायद 15 रुपए तक ऊपर जा रहा हो और नीचे वो 6 रुपए तक आ रहा हो. अच्छा, 15 रुपए वो प्राइस है जहां पे हमें पता होता है कि सेलर मार्केट में आ जाते हैं और मार्केट में वो सेल करते हैं. इसी वजह से प्राइस इससे ऊपर नहीं जाती, प्राइस दोबारा नीचे आ जाती है. सिमिलरली 6 रुपए वो लेवल है जहां पे बायर्स आर कंफर्टेबल इनफ टू बेसिकली एक्यूमुलेट और बाय. तो हमें 6 रुपए के ऊपर बाइंग नजर आ जाती है. इसी वजह से जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपको विजुअली मार्केट के अंदर उन लेवल्स का बता रहे होते हैं कि किस जगह पे मार्केट में सप्लाई आ सकती है या आ रही है माजी के अंदर, और कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पे मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है. सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड एरिया एज वेल एज द सप्लाई एरिया, जहां पे आप अपनी पोजीशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था कि 1995 का एक हाई हमने कनेक्ट किया विद 2004 के हाई से. इस पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद हमें क्या पता लगता है कि हमें फ्यूचर की सप्लाई के बारे में पता लग सकता है कि पोटेंशियली मार्केट में सप्लाई आगे कहां कहां आ सकती है. तो देखें क्या हो रहा है. सी, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद हमें नजर आया कि 2007 में जो मार्केट गिरी है वो भी इसी सप्लाई जोन को टच करके नीचे आई है. और एंड नॉट जस्ट दिस, इवन 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जहां पे पूरी दुनिया लिटरली मेल्ट डाउन हो गई थी, वहां पे भी इसी सप्लाई जोन ने हिट किया है. यू कैन सी दिस एग्जैक्टली इस सप्लाई जोन पे जो रेजिस्टेंस लाइन थी मार्केट ने उसको हिट किया एंड देन मार्केट क्रैश्ड. इट वेंट हाई एज 15,000. 2007 के अंदर मार्केट ने 15,000 का लेवल टच किया था कि KSE 100 इंडेक्स ने, और जैसे ही सप्लाई एरिया को मार्केट ने हिट किया हमने देखा कि मार्केट क्रैश हो गई. तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल ट्रेंड एनालिसिस जिसके थ्रू आपको अंदाजा हो रहा है कि आपने दो हाई कनेक्ट किए और दो हाई को कनेक्ट करने के बाद आपने देखा कि 2006 का क्रैश मार्केट का उस जोन से, उसी रेजिस्टेंस जोन से आता है, और 2008 का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस जो पूरी दुनिया में आया, हमारी मार्केट भी मेल्ट हुई, वो भी उसी जोन से क्रैश होके आया. So you understand the importance and significance of technical analysis and trend line studies in your investment decision making case. And here the story is not over. The most important part is कि जो last 2017 का all time high लगा है उसने भी इसी trend line को honor किया. Just see this. Can you see कि you as a technical analyst what you did, आपने दो हाइज को कनेक्ट किए और उसके बाद लिटरली हमारे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जितने भी हाई लगे पिछले 30 सालों के अंदर, उन तमाम हाइज ने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन को ही ऑनर किया हुआ है, which is very much obvious here right now, which is the upward sloping trend line. और उससे अंदाजा होता है कि मार्केट यहां से गिर सकती है. तो जैसे अभी किसी ने सवाल किया था आप में से कि जी हमें 2017 में किसने सही जज किया था, तो जिन टेक्निकल एनालिस्ट ने सही तरह से सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई कर लिया था 2017 से पहले, उनको अंदाजा था कि दिस ट्रेंड लाइन विल कन्वर्ज विद द मार्केट प्राइस एट 53,000 एंड सी व्हाट हैपेंड. एग्जैक्टली 53,000 के ऊपर जाके मार्केट ने इस लाइन पे कन्वर्ज हुई है, इस रेजिस्टेंस लाइन से, एंड वी सॉ अ मैसिव डिक्लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें अगले 3 साल मार्केट क्रैश कर गई लिटरली. सो नाउ एवरीवन ऑफ यू मे बी
you will have a very clear understanding कि technical analysis और trend analysis का क्या फायदा है. You understand the supply area, आपको resistance zone का पता होता है और उस resistance zone के through आप market के major turns को identify कर सकते हैं, market की major peak को identify कर सकते हैं, market की major bottoms को identify कर सकते हैं. आप identify कर सकते हैं कि कहाँ पे demand create हो सकती है, आप identify कर सकते हैं कि कहाँ पे supply आ सकती है. तो just एक trend line sketch से एक अच्छे एनालिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि 2017 का जो कन्वर्जेंस है प्राइस का विद द ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज अ फोरवॉर्न इंडिकेशन. एज अ एनालिस्ट आपको कॉशियस हो जाना चाहिए था और जब प्राइस मूव हो रही थी देन ऑब्वियसली यू शुड डिवेस्ट. ओके, सिमिलरली जिस तरह हमने सप्लाई एरिया डिस्कस किया, अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं डिमांड साइड. कि हमें सप्लाई का पता लग गया कि सप्लाई क्या है. आप देखिए उसी तरह हमने ट्रेंड लाइन को टच करके दो लोज को टच करके हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इस शेयर के अंदर कहां पे डिमांड जनरेट हो सकती है. तो यू कैन सी इजीली हियर कि इन दो लाइन को टच करके हमें नजर आ रहा है कि ये लाइन आगे चल के डिमांड क्रिएट करेगी. और हमने देखा कि जब प्राइस ऊपर गई है और उसके बाद जब प्राइस हैज फॉलन डाउन, it got the support from the same support zone and it went up again. Then it fell down and got the support from the same level and then went again. And what happened here? Just see here कि प्राइस ने उस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, right? So the support is broken here and this is the big information कि जो सपोर्ट जोन आपने आइडेंटिफाई किया था 2013 से लेके 2018 तक, उस सपोर्ट जोन को इस दफा पायनियर सीमेंट ने सपोर्ट नहीं ली और वो सपोर्ट ब्रेक हो गई है. सो दिस इज द पॉइंट टू एग्जिट. दिस इज बेसिकली द पॉइंट टू एग्जिट. दिस इज द एग्जिट पॉइंट. हम आपको आगे चल के अभी सपोर्ट जोन के बारे में थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज सपोर्ट जोन. दिस इज द एरिया ऑफ कंजेशन इन प्रीवियस लो बिलो द करंट प्राइस मार्केट, द सपोर्ट लेवल्स. आपकी मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की प्राइस मूवमेंट पे कहाँ डिमांड क्रिएट हो सकती है, कहाँ सप्लाई क्रिएट हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये लेवल है डिमांड का, तो विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जी इन एनी गिवन सिचुएशन प्राइस शुड नॉट ट्रेड बिलो दिस लेवल. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर ये सपोर्ट है 10 रुपए की, तो प्राइस को 9 रुपए नहीं होना चाहिए. और अगर 9 रुपए हो गया है तो इसका मतलब है कि सपोर्ट ब्रेक हो गई है, अब नई इंफॉर्मेशन है, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रही है. सो ऑब्वियसली यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. सो एरिया ऑफ कंजेशन एंड प्रीवियस लो बिलो द करंट मार्केट प्राइस इज बेसिकली द सपोर्ट जोन, जहां पे आपको नजर आ रहा है कि एक सपोर्ट मौजूद होती है जहां पे बायर कंफर्टेबल होता है बाय करने पे. सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या है? वो एरिया जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा रही होती. आपको नजर आता है कि जहां पे सेलर्स आ जाते हैं और सेलर्स आके सेल करना शुरू कर देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए है, वो शेयर 6 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो चुका है, तो 15 रुपए इज द लेवल जहां पे सेलर कंफर्टेबल होता है टू सेल. और विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल स्टडीज आपको अंदाजा होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रेंड लाइन और इससे ऊपर ये शेयर नहीं जा रहा, इसकी सप्लाई आ रही है, तो दिस इज द सप्लाई एरिया. सो दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन इन द मार्केट. अब दिस इज द ब्रेंट क्रूड क्लासिकल एग्जांपल, जहां पे आप देखें कि ब्रेंट ने उस सपोर्ट जोन से हमेशा सपोर्ट ली और उसके बाद रेजिस्टेंस जोन से भी हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें रेजिस्टेंस आ रही है. जहां पे सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ ब्रेंट क्रूड के अंदर, हमें नजर आया कि उसमें सपोर्ट क्रिएट हुई, शेयर की प्राइस मूवमेंट ऊपर चली गई. और जैसे ही ये सप्लाई एरिया को टच करती है, वहां पे हमें नजर आ रहा है कि वो सप्लाई
हिट करती है और प्राइस नीचे आ जाती है। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। इसका क्या मतलब है कि जो प्राइस जहां पे रेजिस्टेंस फेस हो रही है आजकल, अगर प्राइस किसी भी वक्त उससे ऊपर चली जाए तो नेक्स्ट टाइम वही लेवल आपकी सपोर्ट बन जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। ये यूबीएल बैंक का प्राइस चार्ट है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें इस जोन पे हमें रेजिस्टेंस नजर आती है। हमें नजर आ रहा है कि जब भी शेयर इस प्राइस को टच करता है वहां से सप्लाई आ जाती है, शेयर नीचे आ जाता है। जब भी सप्लाई आती है वो शेयर नीचे आ जाता है। बट इवेंचुअली क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी ने प्ले किया, और जब शेयर ने उस सप्लाई एरिया को ब्रेक किया तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस मूवमेंट डिक्लाइन हुई तो वहां पे सपोर्ट आ गई। यू कैन सी हियर। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। सेम इज ट्रू विद द जेपीवाई करेंसी, जापानीज करेंसी के अंदर भी आप देखें ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्ट करती है ये हमेशा, और जब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया तो यही रेजिस्टेंस जोन आपके लिए सपोर्ट हो गई है। प्राइस मूवमेंट गिर के नीचे आई एज अ पोलैरिटी। अगर आप पोलैरिटी को समझते थे, इस जगह पे आपने पोजीशन बनाई होगी और फिर ये शेयर करेंसी ऊपर तक गई। उसके बाद जब ये डिक्लाइन हुआ तो अगेन सेम लेवल से हमें जंप नजर आया। उसके बाद प्राइस मूवमेंट दोबारा से ऊपर गई। ये आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्राइस मूवमेंट है। आप देख सकते हैं कि विद इन द चैनल आपको डिमांड जोन का पता लग गया कि ये पर्टिकुलर डिमांड जोन है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है, और जब वो डिमांड जोन, जब सप्लाई जोन ब्रेक होती है तो शेयर लेवल से आके सपोर्ट ले रहा होता है। ये बेसिकली एग्जांपल मैंने आपसे भी शेयर की थी कि सपोर्ट जोन जैसे ही ब्रेक हो हमें वहां से अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना, हमें एग्जिट करना है, और जैसे ही हम एग्जिट करेंगे पोजीशन से हमें नजर आता है कि प्राइस के अंदर मेजर क्रैश आया, मेजर क्रैश, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन स्टडी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट की जो मेजर डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इस जगह पे आई वाज मैनेजिंग अ मल्टी बिलियन फंड, जिसमें मेरे पास भी पोजीशन थी पायनियर सीमेंट के अंदर, और हम इस ट्रेंड लाइन को यूज करते हुए जब जब ऑब्वियसली इंट्रिंसिक वैल्यूएशन यहाँ पे शेयर की काफी ऊपर थी, तो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन चेंज होती है जब इकोनॉमिकल साइकिल चेंज होते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसके 3 महीने 6 महीने बाद चेंज होती है। बट प्राइस इज बेसिकली द लीडिंग इंडिकेटर। प्राइस बेसिकली टेल्स यू कि कुछ होने वाला है। मार्केट की मेजर प्राइस मूवमेंट जो है वो डिटेरिएट होना शुरू हो चुकी है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, और लिटरली अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी थी, वो स्किल सेट था, तो आप यहाँ पे बेच सके। 120 के ऊपर आपने अपने शेयर को डिवेस्ट कर दिया। बट अगर आपके पास इस ट्रेंड एनालिसिस स्टडी नहीं थी तो आप यहाँ पे अपने शेयर को नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज इकोनॉमिकल डिटेरिएशन 3 से 6 महीने के बाद आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है। आपकी बैलेंस शीट की अर्निंग डिटेरिएट होती है 3 महीने के बाद, मगर शेयर प्राइस आज के दिन ही प्राइस इन कर रहा होता है सारी चीजों को। आपकी बैलेंस शीट 3 महीने के बाद पब्लिश होती है, आपको फिर पता लगता है कि अर्निंग डिटेरिएट हो चुकी है। बट टिल देन आपने तो शेयर 160 का शेयर 60 रुपीज के ऊपर आ गया, तो 100 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया। तो दिस इज बेसिकली द स्टडी विच विल बेसिकली हेल्प यू टू गेज कि ठीक है, अर्निंग लास्ट ईयर की 10 रुपए थी, मगर आइंदा आने वाले ईयर की अर्निंग अगर डिटेरिएट हो रही है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, वो मुझे नहीं पता, बट a smart investor is selling in the market, so I'm gonna divest my holdings into the share because the share price has broken the trend line, right? So this is the importance of technical analysis कि कुछ इंफॉर्मेशन मार्केट में 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद आती है, मगर जब तक वो इंफॉर्मेशन मार्केट में पब्लिक होती है उस वक्त तक वो शेयर 160 का 60 रुपीज का हो चुका होता है। तो यू नीड दोस डिसिप्लिन
You need those indicators, you need those tools जिसके थ्रू आपको पता लग सके कि आपने अपनी पोजीशन को, अपने स्टॉप लॉसेस को कहाँ पे हिट करना है, अपनी पोजीशन को कहाँ डिवेस्ट करना है। तो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट अगर आप फॉलो कर रहे थे, आपको पता था कि इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ना चाहिए, दिस इज दी गुड डिमांड जोन। जब डिमांड जोन पे प्राइस आती है हमें खरीदना है, हमें यहाँ भी खरीदना है, मगर जब ये प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक नहीं हुई तो आपको यहाँ पे सेल करना है। और फिर उसके बाद आप देखें शेयर का क्या हाल हुआ है। 12 रुपए का शेयर हो चुका है और आपको टेक्निकल एनालिसिस ने 120 के ऊपर इंडिकेटर दे दिया था कि दिस शेयर इज गोइंग टू गो डाउन। So this is the exit point, right? Another important concept of technical analysis is basically the trend channel, जिसमें हमने बताया कि मार्केट कंसोलिडेट करती है विद इन द चैनल। आपके पास रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है और उसके अंदर प्राइस मूव कर रही होती है। और जब ब्रेकआउट मिलता है तो वही चैनल की रेजिस्टेंस लाइन अगली दफा की सपोर्ट बन जाती है। सी दिस इज द ब्रेकआउट एंड देन व्हाट हैपेंड, मार्केट का प्राइस डिक्लाइन कर गया। अब ये एंग्रो का शेयर है, एंग्रो कॉर्पोरेशन, आप देख सकते हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन, आपको एक क्लियर पैटर्न नजर आ रहा है, क्लियर पैटर्न इज विजिबल। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लोकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि एक पर्टिकुलर डिमांड जोन और एक पर्टिकुलर सप्लाई जोन के अंदर ही ये शेयर ट्रेड करता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, आपके पास अगर ये चैनल मौजूद है तो यू विल एबल टू नो कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द शेयर। इस शेयर को मैक्सिमम कहाँ पे जाना है, मिनिमम कहाँ पे जाना है, और कौन कौन से लेवल्स ऐसे हैं जहां पे मुझे कॉशियस हो जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये शेयर इन लेवल से गिर के नीचे आ रहा है तो मुझे पता है कि इन जोन पे इधर यहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, दिस इज पर्टिकुलरली अ डिमांड जोन एंड आई एम गोइंग टू एक्यूमुलेट। एंड सी होता क्या है, जब ये डिमांड जोन ब्रेक होती है एंग्रो की तो प्राइस चेक करें क्या हो गई। Literally price crashed, it is a nosedive. So as a technical analyst you would be able to understand this is the major information, the price has broken the trend line channel and yes the price is going to go down, right? Again another local example, Maple Leaf Cement का ये example है आपके सामने है। You can see कि the price is moving within the channel, it's always coming at the supply zone से ये शेयर गिर के नीचे आता है, फिर दोबारा ये उठता है, उसी सप्लाई जोन पे टच करता है, फिर दोबारा सपोर्ट जोन पे हिट हो रहा है, फिर सप्लाई जोन को इसने हिट किया और फिर जब इसने डिमांड जोन, लाइक जहां पे डिमांड हमेशा आती थी, उसको जैसे ही ब्रेक किया, यू कैन सी द शेयर प्राइस। आप देख सकते हैं कि 120 रुपए वाला शेयर गिर के 20 रुपए का हो गया। So as a technical analyst, और मैं आपको बताऊं, I was there, I was managing, I had the holding in Maple Leaf Cement. All these examples are basically my personal examples, जिसके ऊपर हमने as a technical analyst काम किया है। तो उस वक्त जो शेयर की फेयर वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई थी। By the time I got exit from the share, उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुई, बिकॉज फेयर वैल्यू की जो एक लिमिटेशन है, आपको ये समझने की जरूरत है कि फेयर वैल्यू की लिमिटेशन ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होती है 3 महीने के बाद, राइट? तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास 3 महीने बाद आती है और उसके बेसिस पे आप एक्शन करते हैं। मगर मार्केट क्योंकि ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग है, देयर आर सर्टेन स्मार्ट इन्वेस्टर, इनसाइडर्स आर देयर इन द मार्केट जिनके पास वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपसे पहले मौजूद होती है। वो उस परफेक्ट इंफॉर्मेशन पे मार्केट में पहले एक्ट कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन उन्होंने यहाँ बेचती होती है। तो आप एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आप यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस जोन अगर आपने नहीं भी बेचा तो आपके पास ये जोन जरूर था जहां पे आप कहते हैं कि नो, दिस इज अ न्यू इंफॉर्मेशन, प्राइस इज चेंजिंग, आई हैव टू रिड्यूस माय इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो इनसाइडर्स होते हैं, मार्केट के स्पॉन्सर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इनके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इनकी दे नो देयर कंपनी बेटर देन यू,
और ये खुद काम कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी डिसिप्लिन के थ्रू जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस आप लिंक कर सकते हैं विद द सपोर्ट जोन, कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो रही है तो मैं अपनी पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ माय व्यू, irrespective of my fundamental view, right now I will honor my stop loss and I'll wait, I'll see कि क्या होता है. तो this is basically the advantage of technical analysis. Another important approach is basically the moving average crossovers. Moving average is basically a widely used indicator in technical analysis that basically smooth out the fluctuations in market price, making it easier to determine the underlying trend. सो क्या होता है कि जो मार्केट की फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको अगर आप मूविंग एवरेज के थ्रू यूज करना शुरू करें तो इट विल स्मूथ आउट. देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मूविंग एवरेज, लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50-day moving average, 200-day moving average. All these basically moving average are basically used to smooth out the fluctuation in the price. प्राइस के अंदर नॉइज होती है, और क्या होता है कि जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि अप्स एंड डाउन्स में यू बेसिकली डिसीव्ड. आपको ये नहीं पता होता कि अब मार्केट परमानेंटली नीचे जाने वाली है या ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना पे नीचे गई और दोबारा ऊपर चली जाएगी. तो वहां पे एक इंडिकेटर जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने स्ट्रैटेजी को बेहतर कर सकते हैं, उसमें मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी. कि आप मूविंग एवरेज के थ्रू मार्केट की फ्लक्चुएशंस, जो नॉइज है, उसको कम कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट द मेन डायरेक्शन, कि जी मेन डायरेक्शन क्या है इस पूरी मूवमेंट के अंदर. तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 2012 से मार्केट ने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के अंदर बाय सिग्नल दे दिया था. सी, दिस इज बेसिकली अ बाय सिग्नल. जब एक मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वी कॉल इट इज अ गोल्डन क्रॉस. गोल्डन क्रॉस पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ. उसके बाद हमने देखा कि वो बाय सिग्नल इंटेक्ट रहा थ्रू आउट इंटेक्ट रहा. वो सेल आता है 2017 के अंदर. सी, दिस इज अ सेल सिग्नल. जैसे अभी आप में से किसी ने पूछा था कि क्या टेक्निकल एनालिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मंदी आने वाली है या मार्केट क्रैश करने वाली है? यस, कर लिया था. ये आप भी कर सकते हैं. अगर आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यूज करते, तो अगर आपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे डिवेस्टमेंट नहीं की थी, तो सेकंड इंडिकेटर इज बेसिक द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. मूविंग एवरेज ने जो 2012 में आपको बाय कहा था, आप देखिए उसने फिर अगली दफा सेल कब कहा है? 2017 के अंदर. और फिर उसके बाद दोबारा बाय कब कहा है? 2019 के एंड में. तो और उसके बाद से आपको पता है कि मार्केट ने 27,000 का जो लो टच किया, उसके बाद मार्केट इस वक्त 47,000 में ट्रेड कर रही है. तो moving average is another very popular versatile approach to filter out, smooth out the fluctuations and noises and get a clear picture where the market is heading to. अच्छा, another very important concept is basically the divergence concept, जो बिल्कुल opposite है confirmation का. So you need the confirmation. Like for example, the RSI relative strength should confirm your price movement. If the price is confirming with the RSI, it's a sell signal. So see this, the momentum is going up, the price is going up. Here the momentum is going down and the price is going down. So it is the divergence concept. So I would tell you everyone to go find out and learn the divergence concept. Obviously in a very short span of time, you would not be able to clearly grasp the idea behind the divergence concept. But one thing I would like to mention here is basically you try to understand if the price is not confirming with the underlying indicators. The underlying indicators can be different. It can be volume, it can be RSI, it can be oscillators, it can be any other indicators. If the price is not confirming the underlying indicator, it is the divergence. And the divergence itself is a sell signal. So initially what I told you कि मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर कुछ मैनिपुलेटर्स भी होते हैं जो मार्केट की प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं. तो you need to understand कि जी this manipulation, this price movement is either manipulation or genuine price, and that you can learn only with the help of the concept
divergence and confirmation. Just see here, this is the clear actual example जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 2020 में प्राइस मूवमेंट ऊपर जा रही है बट योर मोमेंटम इज गोइंग डाउन. यहाँ पे क्या होता है आप देखें, प्राइस ऊपर जा रही है, मोमेंटम भी ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, मोमेंटम ऊपर ही है. इट्स कंफर्मिंग एवरीथिंग. बट राइट एट द सर्कल, जो मैंने सर्कल किया है, प्राइस इज गोइंग अप बट द मोमेंटम इज गोइंग डाउन. इट्स अ क्लियर सेल सिग्नल. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड? जस्ट सी दिस. उसके बाद क्या हुआ? क्रैश हो गई मार्केट, लिटरली क्रैश हो गई. सो लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस, कंफर्मेशन. Another example, वीकली बेसिस के ऊपर आप सब देख सकते हैं, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि whether this is the divergence or the confirmation. The price is going up, momentum is going up, and what happened here? Price is going up, market 53,000 all time high पे market जा रही है, momentum is going down. This is the sell signal. This is the sell signal from the technical strategy standpoint. और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो मार्केट में काम कर रहा है, अगर उसके पास ये इंडिकेटर है, अगर उसके पास वो स्किल सेट है, who can basically gauge that the price is not confirming the indicator, he'll start liquidating his position. He'll divest his position and see what happened afterward. The market literally crashed. So now I'm coming back to my last topic for today, which is very important, is basically the candlestick pattern, and I'll quickly touch upon this concept. कि candlestick pattern क्या होते हैं, कि this green candle and red candle, maybe some of you basically have gone through with this and know कि ये क्या होते हैं. ग्रीन और रेड का मकसद यहाँ पे बताने का, विजुअलाइज कराने का ये है कि ग्रीन का मतलब बुलिश है, रेड का मतलब बेरिश है. बट कैंडल इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द मार्केट डायरेक्शन. आपके पास कैंडल स्टिक के हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द मार्केट इज इन जनरल इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, इन अ सेक्युलर बुल ट्रेंड और अ सेक्युलर बेयर ट्रेंड. तो कैंडल का मतलब क्या है कि जो ओपन हो रही है, अगर इसकी क्लोजिंग ओपन से ऊपर है तो इसका मतलब है दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन, सो कैंडल वुड बी ग्रीन. इफ द ओपन इज अप एंड द क्लोज इज डाउन, इसका मतलब है कि मार्केट जहां ओपन हुई उससे नीचे बंद हो रही है, इट्स अ डाउनवर्ड कैंडल, इट्स अ रेड कैंडल, राइट. सो इन अ वेरी सिंपल टर्म, if the close is above the open, it's a upward market, it's a bullish market, it's a bullish candle. And if the close is lower than the open, it's a downward market, it's a bearish market. अच्छा, कैंडलस्टिक का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कैंडलस्टिक का फायदा ये है कि आप सिर्फ एक सिंपल एक झलक में आप समझ जाते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, राइट. आपको पूरे दिन का पैटर्न सिर्फ एक कैंडल से पता लग जाएगा कि ओके, मार्केट ओपन हुई है नीचे, क्लोज ऊपर हुई है, एक टाइम पे मार्केट ने हाई यहां तक लगाया था और लो यहां तक लगाया था. ओके, तो डिफरेंट पैटर्न्स जो मार्केट के बन रहे होते हैं, जब ओवर द पीरियड आप सालों को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप मंथ को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप ईयर्स को एनालाइज कर रहे हैं, क्वार्टर को एनालाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त एनालिसिस के वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर दिन के कैंडल को इतने गौर से देखें. तो आपके पास एक विजुअल प्रेजेंटेशन होती है कैंडलस्टिक के फॉर्मेट में, और विद द एक्सपीरियंस आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप एक ही बार में वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वेदर द ट्रेंड इज अपवर्ड और डाउनवर्ड. So basically this is a very important approach to understand the price movement, and it gives you a very unique visual effect which is not easily identifiable with any other charts. Like for example bar chart, line chart से आपको ये information नहीं मिल सकती जो कैंडल से मिल सकती है. और remember इन कैंडल्स के, हर कैंडल्स के अपने मतलब होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल बता रहा है ग्रीन, लार्ज ग्रीन, तो इसका मतलब ये है कि बुलिश मोमेंटम डेवलप हुआ, मार्केट नीचे ओपन हुई, क्लोज ऊपर हुई, इट्स अ वेरी बुलिश साइन. सिमिलरली मार्केट ऊपर ओपन हुई, नीचे बंद हुई, इट्स अ बेरिश साइन. मार्केट नीचे ओपन हुई है, ऊपर बंद हुई, इट्स अ बुलिश, देन साइडवेज,
then bearish. तो आपने एक ही पिक्चर के अंदर आपने पूरे वीक की मूवमेंट को विजुअलाइज कर लिया और आपने अंदाजा लगा लिया कि इस पूरे वीक में क्या हुआ है. फर्स्ट डे मार्केट ऊपर थी, अगले दिन नेगेटिव थी, फिर ऊपर, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव. So it's a 5-day effect and you can visualize in just a single picture. This is the beauty of candlestick. And these are some of the patterns जिसको I would say कि every one of you should study thoroughly and try to understand कि ये क्या बता रहे हैं. These are some patterns के अगर bearish market में तीन लगातार bullish trend बन जाए तो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं. It's a bearish continuation pattern, it's a bullish continuation pattern, it's an evening doji star pattern. So all these patterns have certain, definitions. You need to understand those for your own referral. मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है. Every one of you should understand each and every pattern. और ये पैटर्न मार्केट में जब इमर्ज होते हैं तो फिर सिमिलर पैटर्न अगले आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आना शुरू होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ये डीजी खान का लाइव एग्जांपल है. रिसेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डीजी खान सीमेंट का ट्रेंड है. शूटिंग स्टार बनता है. शूटिंग स्टार इज अ रिवर्सल सिग्नल, राइट, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है. शूटिंग स्टार का क्या मतलब है. जस्ट सी दिस इवनिंग स्टार, इट्स अ बेयरिश साइन. ये आपको बता रहा है कि शेयर नीचे जाएगा. अब ये देखें, शूटिंग स्टार यहाँ बना, उसके बाद शेयर नीचे आ गया. उसके बाद हैमर की फॉर्मेशन हुई. हैमर इज अ बुलिश साइन, मार्केट में तेजी हो गई. अगेन इवनिंग स्टार इज अ बेयरिश साइन. इवनिंग स्टार बनता है, मार्केट में नीचे मंदी हो गई. सिमिलरली मॉर्निंग स्टार इज अ बुलिश साइन, तेजी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज पैटर्न्स. और अगर आपको पैटर्न का अंदाजा हो जाता है कैंडल का, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन. ऑल दीज आर बेसिकली द क्लासिकल एग्जांपल of candlestick. Doji star is a big reversal signal. ये डोजी स्टार का पैटर्न बना है मार्केट के अंदर. इट्स अ बिग सेल सिग्नल. और उसके बाद आप देखें क्या हुआ. एंड दिस इज द जेन्युइन मार्केट प्राइस. दिस इज नॉट द assumption. दिस इज द जेन्युइन मार्केट डोजी स्टार पैटर्न. और उसके बाद मार्केट की मूवमेंट देखें. दिस इज द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न. उसके बाद मार्केट की मूवमेंट देखें. So you need to understand these. And the last thing is basically you need to understand this Steve Nissen book of candlestick, जिसके अंदर वो मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि कैंडलस्टिक को अगर आपने यूज करना है तो यू शुड बी यूजिंग इट विद द हेल्प ऑफ अदर इंडिकेटर्स लाइक वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है, बुलिश इंगल्फिंग है, इट्स अ बाय सिग्नल. वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा है तो इट्स अ सेल सिग्नल. So this is basically the some of the important approach जो I would like to I wanted to share with you. And keep in mind that the technical indicator is basically just a tool to basically help you out. तो आपके पास वो सारे टूल्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप मार्केट को सही एनालाइज कर सकें. एंड द स्मार्टेस्ट ट्रेडर्स आर ऑलवेज वाचिंग फॉर वार्निंग सिग्नल्स. अगर कहीं पे भी कोई सिग्नल आ रहे हैं, चाहे वो वार्न कर रहा है आपको या आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो you should use them. So on this note, I would like to conclude my session here. I hope many of you can be benefited by using the approaches that I just discussed. अच्छा, हमारा एक YouTube चैनल भी है EK Global Capital के नाम से, जिसपे हम मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से हम डिस्कस करते रहते हैं. तो if any one of you be interested, they can follow us there to basically understand the current market situation on the basis of technicals. And any one of you have any question, I'm open for the question right now. Okay, thank you so much, Ehtisham. So we'll take the questions first before we, finally see you off. तो questions 10 मिनट ले लेते हैं questions के लिए, अगर आपके पास 10 मिनट हैं तो. फिर then we can wrap up the session formally after that. Please go ahead with the questions one by one. Ji. Who's asking first? Atif? पूछिए. Hi sir, this is Atif. Sir, मेरा क्वेश्चन था क्रिप्टो के हवाले से कि ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेजेस जो मेथड्स हैं, ये इज इट रिलेटेबल विद द क्रिप्टो स्टॉक्स? जी बिल्कुल. इनफैक्ट आपको अगर आप देखें तो इस वक्त ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस
crossovers are very much relevant in cryptocurrencies. हमारी कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने बताया है. देखिए, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज के आप यू एबल टू अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट, राइट. तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे आप उसके फंडामेंटल्स को राइटली गेज नहीं कर सकते, या आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आप उस वक्त उसको राइटली पिन पॉइंट कर सकें. तो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, मूविंग एवरेज की मदद से, ट्रेंड लाइन की मदद से आप उनकी प्राइस मूवमेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड यस, क्रिप्टो की प्राइस मूवमेंट टेक्निकल्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आप गेज कर सकते हैं. इनफैक्ट इस वक्त जो दुनिया की सबसे ज्यादा रिसर्च एप्लीकेशन है करंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, वो करेंसी और क्रिप्टो के अंदर ही है. सर, दिस इज मोहम्मद शहबाज हियर. जस्ट टू आस्क के अभी मार्केट जैसे आज 100 इंडेक्स क्लोज हुआ है अराउंड 44,900 पे, तो 100 इंडेक्स के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आप सजेस्ट करें जिससे हम गेज कर सकें नेक्स्ट 2 मंथ्स की शॉर्ट टर्म पोजीशन, कि हम इंडेक्स को कहाँ देख पाएंगे अगले 2 महीने में? जी जी, सिंपल, अगर 100 इंडेक्स को गेज करना है तो आप ट्रेंड लाइन देखें और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें. अभी रिसेंट जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है मार्केट की, वो है 42,700 के ऊपर, 42,800 के ऊपर एक टेंटेटिव ट्रेंड लाइन है. और मार्केट की जो अपवर्ड रेजिस्टेंस लाइन है वो है 46,000 के ऊपर. तो 46,000 इज द रेजिस्टेंस जोन एंड 42,800 इज द सपोर्ट जोन. इसके बीच में अगर मार्केट है तो वो कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर है. रिमेंबर, जो हमने कहा था, इज अ साइडवेज मार्केट जिसके अंदर मार्केट की कोई रेंज डिफाइन नहीं है. अगर मार्केट 42,700 को ब्रेक कर रही है तो इसका मतलब है मार्केट अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर चुकी है, जो अभी हमने बताया. और अगर डिमांड जोन को ब्रेक करती है, इसका क्या मतलब है कि अब हमें स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना होगा, ऑनर करना होगा, और हम अपने शेयर के स्टॉप लॉसेस की तरफ जाएंगे. इन द मीन टाइम, अगर मार्केट 46,000 को क्रॉस करती है तो रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने क्रॉस किया, ऑब्वियसली हम बुलिश साइकिल की तरफ जाएंगे और हम बुलिश जोन में एंटर होंगे. हमारा ईके ग्लोबल यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने इस वीक की ट्रेंड एनालिसिस की हुई है, वो आप मजीद देख सकते हैं. तो यू विल गेज एन आइडिया कि मार्केट आइंदा आने वाले वीक में किस तरह से टेक्निकली बिहेव करेगी. जी प्लीज. ओके सर, सो जिस तरह से हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करें डिफरेंट कंपनीज का स्टॉक मार्केट्स में, उसी तरह से अगर हम आजकल की सिचुएशन देखें कोविड-19 की, उसकी जो जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है और जिस तरह से हम उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग अगर हमें करनी हो, तो क्या उसको भी हम ट्रेंड एनालिसिस के उसमें और मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के उसमें प्लॉट करके फर्दर फोरकास्ट कर सकते हैं? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके इन्फेक्शन रेशो, डिजीज रेशो को गेज कर रहे हैं. तो अगर आप सिर्फ गूगल कर लें और गूगल करके आप सिर्फ देख लें कि कोविड-19 डिजीज इन्फेक्शन फ्यूचर फोरकास्ट, तो आपको वो सारे टेक्निकल ट्रेंड, टेक्निकल मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स जो आज की प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया आपको नजर आएगा. क्योंकि इस इन्फेक्शन को गेज करने का आपके पास और कोई तरीका ही नहीं है कि आप स्मूथ आउट करें, आप फ्लक्चुएशंस को देखें, आप मूविंग एवरेजेस को देखें. तो ऑब्वियसली इट इज वेरी मच पर्टिनेंट एंड वेरी मच रिलेवेंट कि आप मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड लाइन को यूज करते हुए आप उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकें. और हमारी एक वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर हमने बेसिकली इन्फेक्शन रेशो को फोरकास्ट किया था विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. I think I was asking the question and probably I was on mute. I'm sorry. My question was that firstly, which software would one use if we were to do the technical analysis ourselves? Which software would you recommend, that we can follow for doing this analysis ourselves? And B, one of my observations was that when we get research reports from brokerage houses, generally speaking, there is very little commentary on the technical analysis bit. Mostly the focus is on the intrinsic value and the relative valuation ratios and the market-based multiples. So these are the two things that, I would like your views on these two.
A very relevant question and very interesting question I would like to answer. And I informed them, like in every country, in a developed country, obviously the technical analysis is a very important tool to make the investment decisions. Unfortunately, in Pakistan, since we are just developing right now, our market is still in a very nascent stage, and we are just learning new techniques and approaches. Still, the adaptability and the understanding of these approaches are very limited. This is one of the limitation. I think slowly and gradually people are grasping to this changing analytical approach. इंडिया के अंदर ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट एवरी ब्रोकरेज हाउस, एवरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी has one technical analyst, one technical strategist who basically use this. पाकिस्तान में बाय साइड के ऊपर तो ये ट्रेंड है, बट सेल साइड पे ये अप्रोच नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेज की इस वक्त काफी कमी है, राइट. तो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम अ सीएमटी प्लेटफॉर्म हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस को, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर टेक्निकल एनालिस्ट की तादाद, सीएमटी की तादाद में आपको बताऊं 1000 के अंदर है, और हमारे पाकिस्तान में जो टोटल क्वालिफाइड सीएमटीज हैं वो लेस देन 10 है. तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इन फैक्ट सिंस our industry is growing, our market is growing, it will take a time, but people will understand the importance and they will grasp to it. Or one more thing, it is just an observation. Maybe I'm wrong, because back in 1995, when I started my brokerage career and all that, so I remember BMA used to have a technical analyst at that time. Is it because they don't want to share this information, because then this is something that they find as privileged, and they would keep it on to themselves, and they would not like to share them with the average investor on the street, so that he cannot benefit from that information? Because I invest in stocks, and I get reports all the time, but I hardly find any report which is giving a commentary on the technical analysis bit of the investment process. Very, very good observation, I would say, Ms. Shazia. It is basically a privilege study. And people who basically understand this, they try to hide it, they do not share it. Even, in our platform, people come to us and they tell us, Kiji, why you are sharing this information that the market is going to go down or the market is going to go up, right? So the smart players, they always, it's a zero-sum game, right? The stock market is a zero-sum game. Somebody loses and somebody wins, right? So the smartest people, they try to utilize this information for their own benefit. And the research publication, which is just the fundamental side of the story, is basically only one side of the coin, right? You need to have a 360-degree view of the market, so that you will be better poised, you will be ideally poised to get the benefit out of it. Because the smartest investor, like I myself, have spent like 15 years as a sovereign fund manager. I make my investment decisions primarily, my entry and exit positions primarily on the basis of technical analysis. Yes, the fundamental side of the story is very, very important. You cannot ignore it, but it prevails for a longer period of time. Like, for example, I told you in 2017, the Pioneer Cement example I shared you, I had tons of shares in my portfolio. I burnt my fingers in Chirag Cement at that time, so I know the story. Yeah. So and all those research reports were pointing like 30% upside potential and so on and so forth. So basically, I avoided those, and I took my stop loss on the basis of technical parameters, because my trend line support were breaking down, and that was the point that saved me my hand into the falling market. And that I would recommend you to basically, every one of you who wants to pursue their professional career, they should give some weight in their studies in learning technical analysis and approaches.
think we need to do an article on your company and you as well. So I will do one on you, inshallah. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Ehtisham, for spending time with us. अच्छा वो एक सवाल रह गया था, सॉफ्टवेयर अगर आप बता दें, वो मैंने एक सवाल किया तो किसी ने और भी पूछा है कि सरफराज भी पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अगर आप बता दें बिफोर वी फॉर्मली रैप अप. सॉरी. सॉफ्टवेयर का मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो CMT करिकुलम पढ़ते हैं हमारे साथ, उनको हम जो हमारे साथ इनरोल्ड होते हैं उनको हम फ्री सॉफ्टवेयर दिलवा देते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं. बट उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जब तक वो हमारे कोर्स के साथ इनरोल्ड होते हैं उनके पास एक फ्री सॉफ्टवेयर का एक्सेस होता है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँ कि आपके पास फ्री टूल्स अवेलेबल हैं राइट नाउ. इफ समबडी इज स्टार्टिंग देयर करियर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आप investing.com के ऊपर चले जाएं. investing.com पे आपको डिफरेंट तरह के शेयर्स की प्राइस मूवमेंट को रीड करने का आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा. इसके अलावा आप लोकल वेबसाइट्स के ऊपर भी आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं. अपने ब्रोकरेज हाउस को आप अप्रोच कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल KSB सिक्योरिटीज आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, टेक्निकल एनालिसिस चार्टिंग टूल प्रोवाइड करती है, आप वो देख सकते हैं. और भी डिफरेंट लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनके पास अगर आप जाते हैं अपना अकाउंट ओपन करने तो उसके साथ वो आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. But my advice would be to start your learning journey with investing.com, which is a free software, a free platform available. Once you will get hands on it, then obviously you can move into the other paid subscription. ठीक है. Okay, thank you so much. We greatly appreciate your in-depth discussion on technical analysis. I think it is highly valuable and highly useful for both me as a stock investor and for my students as well. I have subscribed to your channel while you were giving the talk, and I would encourage my students to subscribe to your channel as well. So that's it, and thank you once again for taking time out in Ramzan and giving an in-depth view on the various aspects of technical analysis. Thank you so much, Ms. Shazia. I'm honored to be. It was a pleasure having you. Pleasure having you. Same here. Thank you so much. Okay. Most welcome. I wish you good luck, every one of you. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.